Hello students, how are you all? Before starting the lesson, I am going to sing a song for you. I hope this song will refresh your mind. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ गिरी तो घोड़े को लग गई ठंडी तकबक 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 घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ गिरी तो घोड़े को लग गई ठंडी दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा घोड़ा अपना तगड़ा है देखो कितनी चर्बी है चलता है मेहरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है तकबक 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 घोड़ा अपना तगड़ा है देखो कितनी चर्बी है चलता है मेहरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा. I hope you really enjoyed this song. Okay, now come to the topic. Today's our lesson is Anita and the Honeybees from class 4th EVS. Anita Kushwaha was born in Bochaha village in Muzaffarpur district in Bihar. After great hardship, Anita went to school and college. Anita's parents did not like the idea of girls going to school. Village teachers explained the importance of study to Anita's parents. They agreed to send Anita to school. Anita learned to ride a motorcycle. Anita joined a course of beekeeping and started her business of beekeeping. She had to face many problems, but with her mother's support, she managed her studies and work both. Anita now knows what she wants to do. Anita wants to become a wholesaler so that she can help the village people to get the right price of their honey. Every beehive has 3 types of bees: queen bee, worker bees and male bees. They all perform different roles. Ants, termites and wasps also live together like bees. Now let us see some important points about honeybee. Honeybees have a very unique life. Honeybees की बहुत ही अलग लाइफ होती है अलग से. They live in beehives. वो beehives में रहते हैं. There are 3 types of bees in beehive. 3 टाइप्स की बीज होती है beehive में. कौन सी होती है देखिए. क्वीन बी, वर्कर बी एंड मेल बीज. मेल बीज को हम ड्रोन बी भी बोल सकते हैं. क्वीन बी, ड्रोन बी एंड worker bees. There are 3 types of bees. They all perform different roles. Now see, this is a queen bee. Every beehive has one queen bee that lays eggs with the help of male bees. हर beehive में only one queen bee होती है. सिर्फ एक bee होती है जो queen होती है. This is a picture of drone bee. There are only few males in the hive. hive में बहुत ही कम male bee होती है. The male bee is also called drone bee. The male bee died after mating with queen bee. This is a worker bee. Most of bees in the hive are worker bees. They are infertile. तो ज़्यादातर जो बीज होती है हाइव में वो सारी वर्कर बीज होती हैं. तो क्या करती है? These bees work all day. तो ये वर्कर बीज जो होती है पूरा दिन काम करती हैं. They make the hive and also look after the baby bees. They fly around flowers in search of nectar. तो हाइव बनाती हैं
और जो बेबी बीज हैं उनका ध्यान रखती हैं। फ्लावर्स के आसपास जाके वहाँ से फ्लावर्स से वो नेक्टर लेकर आती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विथ नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। तो जब अगर एक बी को नेक्टर मिलता है फ्लावर के अंदर, तो वो भी इस एक स्पेशल डांस करती है जिस डांस की वजह से या जिस आवाज़ की वजह से जो अदर बीज है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उनको पता चलता है कि यहाँ पे नेक्टर है, उस फ्लावर में नेक्टर है, जिससे वो क्या बनाती हैं, हनी। नाउ लेट अस सी अबाउट द एंट्स। एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। द क्वीन एंट लेज द एग्स. The soldier ant look after and guard the ant's nest. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. तो ants भी इनकी तरह ही, हनी बीज की तरह ही एक साथ रहती है और काम करती है। इसमें भी क्वीन एंट होती है, वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है। सोल्जर एंट्स जो होती है वो उन एंट्स नेस्ट का ध्यान रखती है और एग्स का ध्यान रखती है। और जो वर्कर एंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड सर्च करके लेकर आती हैं। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 इज फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो जो जो चीज़ें आपने खरीदी है स्कूल के लिए, तो उन चीज़ों के नाम लिखने आपको और उनको खरीदने के लिए कितना खर्चा आया, मनी स्पेंड, वो आपको दूसरे कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है, जो जो चीज़ें आपने खरीदी है उसका पूरा खर्चा आपको निकालना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। आपने इस साल जो बुक्स लिए वो कितने पैसे आपको खर्च करने पड़े। आंसर इज आई स्पेंड ₹1500 ऑन बुक दिस ईयर। तो आप ये आंसर अपने हिसाब से लिखिए कि आपने बुक्स खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर। आपको किस तरह का यूनिफॉर्म पहनना पसंद है। आंसर इज आई वुड लाइक टू वियर वाइट पोलो टी शर्ट, ब्लू पैंट्स, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज एंड अ ब्लू जैकेट। तो ये भी आंसर आप अपने हिसाब से लिखिए। आपके स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसमें से हाउस यूनिफॉर्म आपको पसंद आता है या स्कूल यूनिफॉर्म आपको पसंद आता है, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। स्टेइंग इन स्कूल, लेट अस टॉक। Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. क्या आपको कोई ऐसा बच्चा मालूम है कि जो पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे किसी बच्चे के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है। Yes, I know a boy who lives around my house. His name is Ravi. He wanted to study but could not do so due to his family problems. He had to go for work in order to help his family survive. Although child labor is an offense in our country, his case is special. Being the only male in this family, he had to take up the responsibility of taking care of his family at this young age. तो ये आंसर आप अपने घर के आसपास कोई बच्चा आपने ऐसा देखा है या आपके घर में जो मेड आती है उनका कोई बच्चा आपको ऐसे पता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8th? डिस्कस। तो आपको पता ही है कि हर बच्चे का ये हक है कि वो 8th क्लास तक एजुकेशन ले, 8th क्लास तक वो पढ़े। पर क्या आप सोच सकते हो कि इस तरह से सारे बच्चे 8th क्लास तक पढ़ते हैं? तो हियर इज द आंसर, नो आई डोंट थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8th, although they have the right to free education up to class 8th. This is because of various family related problems a child has and Ravi is an example of such a child. तो बहुत से बच्चे फ्री एजुकेशन होते हुए भी वो एजुकेशन नहीं ले पाते क्योंकि उनके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके घर में और कोई काम करने वाला नहीं होता है या पैसे कमाने वाला नहीं होता है, तो वो बच्चों से ही काम करवाते हैं या बच्चे ही काम करते हैं जिससे उनका घर का खर्चा चल सके। तो जैसे आपने यहाँ पे रवि को देखा है, रवि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ चाइल्ड। तो ये बच्चे अपने काम की वजह से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। क्या आपने कभी कोई इंसेक्ट देखा है फ्लावर के पास? तो उसका नाम
लिखना है आपको यहाँ पे। येस आई हैव सीन इंसेक्ट्स नियर फ्लावर, दे आर बटरफ्लाई एंड हनी बी। बटरफ्लाई और हनी बी को आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। क्यों वो फ्लावर्स के पास आते हैं? आंसर इज दे कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के पास किस लिए आते हैं? क्योंकि जो फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है वो लेने के लिए ये सारे इंसेक्ट्स फ्लावर्स के पास आते हैं। When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? जब honeybees उड़ती है तब आपने सुना होगा एक अलग से साउंड आती है। आंसर इज yes, they produce a buzzing sound when flying and we can try to copy that sound. है ना, कैसे बज करती हो? आप लोगों ने कभी कॉपी किया है? चलो अभी मेरे साथ कीजिए। आप किस तरह से हनी बी की साउंड निकालते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और मुझे ज़रूर भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज टंग। पीपल इन माई एरिया यूजुअली पुट लाइम, अप्लाई ओनियन, विनेगर और आइस ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बीज हैज टंग। तो आपको पता ही है हनी बीज जो हमें बाइट करती है, काटती है, तो वहाँ पे आपके एरिया में क्या लगाते हैं अगर ऐसी चोट जब हनी बी काटती है। तो जो भी इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपके यहाँ यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लाइम लिखा है, ओनियन, विनेगर एटसेट्रा। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। आपको हनी बी की पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी में और उसको कलर करना है और उसको नाम ज़रूर देना है। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है आई विल नेम इट पीकू, तो आप कोई भी और नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, रिकू, टिंकू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards and I got 12 kilograms of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. What will be the total cost of Anita's 20 boxes? तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम सम दिया हुआ है, तो आपको पता ही है हर सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जब लीची ट्रीज को फ्लावर्स आते हैं फरवरी में, तब वो क्या करती है, 4 बॉक्सेस वहाँ पे लीची ऑर्चर्ड्स में गार्डन में वो रखती हैं। तो एक बॉक्स में से 12 kg ऑफ हनी उसे मिलता है और वो हनी वो मार्केट में सेल करती हैं। तो ये उनकी फर्स्ट अर्निंग थी, सबसे पहले उनको ये अर्निंग मिली थी। अब उनके पास कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस। तो अब आपको निकालना है कि 20 बॉक्सेस के हनी को जब अनीता सेल करती है तो उसको कितने पैसे मिलते, कितनी अर्निंग वो लेती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस आपको निकालना है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द पैसेज दैट द कॉस्ट ऑन 1 बॉक्स इज इक्वल टू ₹2000. Hence the cost of 20 boxes will be ₹2000 into 20 equal to ₹40,000. तो एक बॉक्स की कॉस्ट है 2000, तो ऐसे 20 बॉक्सेस की कॉस्ट कितनी होगी? 40,000। तो जो ये एक बॉक्स की हमने कॉस्ट ली है जो ₹2000 है, ये कहाँ से ली है? ये कॉस्ट आपके लेसन में, अनीता एंड द हनी बी के लेसन में पेज नंबर 42 पे दी गई है कि ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। तो हमने वहाँ से ये कॉस्ट ली है और इसके हिसाब से हमने 20 बॉक्सेस की कॉस्ट निकाली है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ इज हनी यूज इन योर हाउस? व्हाट इज इट यूज फॉर? आपके घर में हनी यूज होता है, किस लिए यूज होता है? आंसर इज यस, हनी इज यूज इन माई हाउस एज स्वीटनेस इन फूड्स. आई ईट हनी विद ब्रेड. ऑल्सो माई फादर टेक्स 1 tablespoon ऑफ हनी एवरी मॉर्निंग टू कीप हिम हेल्दी. तो हनी जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है। तो किस तरह से आपके घर में हनी यूज़ होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि फूड में स्वीटनेस लाने के लिए हनी यूज़ करते हैं, ब्रेड के साथ वो यूज़ करते हैं, उनके पापा अर्ली मॉर्निंग में हनी लेते हैं जो हनी बहुत हेल्दी होता है।
Now next question, Anita and others in her village get rupees 35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? तो अनीता के विलेज में 1 किलो हनी कितने का मिलता है? 35 रुपीज़ का। तो आपके विलेज में या आपके टाउन में जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ कितने का मिलता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसे इस यहाँ पे मैंने लिखा है 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट ₹345 इन माई टाउन। तो आपको अपने टाउन में हनी की प्राइस फाइंड आउट करनी है और लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? हनी के कौन से डिफरेंट कलर्स होते हैं? आंसर इज गोल्डन एंड ब्राउन आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी आई हैव सीन। तो आपने देखा होगा एकदम गोल्डन कलर का भी हनी होता है, ब्राउन थोड़े दिन बाद अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये 2 कलर्स हनी के हमने देखे हैं। हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव? एंट्स कहाँ पे रहती है? आंसर इज यस, एंट्स लिव इन एंट हिल्स मेड ऑफ अर्थ। आपने देखा होगा जहाँ पे खाली प्लॉट पड़े हुए हैं या करती अपना घर बनाती है और वहाँ पे वो रहती है। ये सभी बच्चों ने देखा ही होगा, है ना? Which are some other insects that live together in a group like honeybees? और कौन से इंसेक्ट्स है जो हनी बीज की तरह ग्रुप में रहते हैं? आंसर इज अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर लाइक हनी बीज आर एंड्स, वैस्प्स एंड टर्माइट्स, है ना? एंड्स रहती है ग्रुप में, टर्माइट्स मतलब दीमक रहती है ग्रुप में, वैस्प भी रहते हैं। वैस्प क्या होते हैं? वैस्प को आप हिंदी में बोलते हो ततैया। तो ये इंसेक्ट्स कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं? हनी बीज की तरह रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट एंड्स? लिस्ट देम। एंड्स किस तरह के खाद्य पदार्थों की तरह अट्रैक्ट होती है ये आपको यहाँ लिखना है। आंसर इज एंड्स आर अट्रैक्टेड टू शुगरी आइटम्स, ग्रेन्स, डेड इंसेक्ट्स एटसेट्रा। तो आपको जहाँ पे भी मीठी चीज़ें पड़ी हुई दिखती है या अनाज गिरा हुआ दिखता है या मरे हुए इंसेक्ट्स दिखते हैं वहाँ पे आपको एंड्स की लाइन दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट अ लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर? एंड की लाइन की तरफ देखना है और उसका कलर कैसा होता है आपको बताना है। दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर, है ना? ब्लैक कलर की एंड्स होती है तो वो लाइन ब्लैक कलर की दिखाई देती है उनकी लाइन। ब्राउन कलर की होती है या रेड कलर की एंड्स होती हैं तो वो लाइन हमें उसी कलर की दिखाई देती है। Have you been bitten by an ant? What was the ant like? Black or red, big or small? क्या आपको कभी एंट ने काटा है? अगर काटा है तो कौन सी एंट थी? ब्लैक थी, रेड थी, छोटी थी या बड़ी थी? आंसर इज यस, आई हैव बीन बिटन बाय एंट, इट वॉज बिग रेड एंट। तो अगर आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आपको किसी एंट ने बाइट किया है तो उस एंट के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सेम टू सेम आंसर कॉपी मत कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिए। डू एंड्स एवर कम नियर यू व्हेन? एंड्स आपके पास कब आती है? येस, दे डू कम नियर मी व्हेन शुगर, स्वीट्स और अदर ईटेबल्स आर लाइंग अराउंड मी। जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ आसपास अगर शुगर गिरी हुई है या कुछ स्वीट आइटम गिरा हुआ है या कुछ और खाने की चीज़ें गिरी हुई है, ऐसे टाइम पे आपको वहाँ पे एंड्स दिखाई देगी और आपके पास वो ज़रूर आएगी। तभी अगर आपके ऊपर जूस गिरता है, कुछ मीठी चीज़ गिरती है तो आपकी मम्मी कहती है कि आप कपड़े चेंज कर लीजिए, नहीं तो एंड्स आपको बाइट कर लेगी। Look carefully at some big and small ants. How many legs does an ant have? Big ant, small ant. तो किसी भी बिग या स्मॉल एंट की तरफ आपको देखना है और उनको कितने लेग्स होते हैं ये आपको ढूंढना है। No matter what size, both the big and small ants have 6 legs. आंसर इज कि साइज कोई मैटर नहीं करता है, बिग हो या स्मॉल एंट हो, उनके लेग्स कितने होते हैं? 6 legs होते हैं। Watch this video lesson carefully and try to write down answers of these questions yourself in your EVS copy. I hope you understand this lesson. Bye bye students. Thanks for watching.